वो ये नहीं नहीं वो है फोन वो All here present is and dear parents, along with my students, I would like to call Sir, Secretary Sir, and Principal Ma'am. Please come and take your seat, and our Admin Ma'am, come and take your seat. Later on, we will start our program by Quran recitation. The Kirat Sharif, come. Excuse me, Siraj Ma'am, please come on stage. Siraj Nisa Ma'am, please come and take your seat on stage. Habib 3 points. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الرصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم गंगजटाधर गौरी मनोहर गंगजटाधर गौरी मनोहर गिरिजातनया तव शरणं विघ्नेश तव शरणं सिद्धिविनायक तव शरणं लसुतने लंबोदरने अम्बासुतने कविजनसुतने तव शरणं विघ्नेश तव शरणं सिद्धिविनायक तव शरणं तव शरणं तव शरणं Good morning, honorable principal, teachers, and mostly importantly, our dear friends. On behalf of the Indian student body, it is a privilege to welcome you to today's meeting. We are truly grateful that you have taken time out of your busy schedules to be here. Your presence today is a powerful reminder that you are grateful supporters standing by us as we navigate our academic journey. This meeting is more than just a discussion of grades. It is a celebration of our growth and a collaborative effort between our school and our homes. We are excited to share our progress and challenge with you, knowing that with your guardians and our teachers' dedication, there is no limit to what we can achieve. Then your being our pillars of strength and for your unwavering belief in us, we hope today's decision is both inspiring and prouding. For everyone, once again, a very warm welcome to you all. Thank you. In our past academic year and further activities what we are going to conduct in our school management, school premises. So all the activities are conducted by our school management. So now our secretary sir will speak up all the activities, what happened and what will be the happening in our school. Now I would like to call secretary sir to speak up some words regarding the student discipline and further activities. Dear parents, welcome all for the
parents-teacher meeting. This year, already we have conducted 2 to 4 parents meetings, that is individual parents meeting. Parents with the teacher, individual parents has attended, but most of the parents not attended. बहुत सारे पेरेंट्स अटेंड नहीं कर रहे। जब प्रोफेशन के बारे में बात करने को थे हमें, nobody has attended properly. जबरदस्ती बुलाना पड़ा। अभी भी 10:30 we have told, 10:30 we have scheduled for the meeting, but 11:10 हुआ तभी अभी तक हमारे पेरेंट्स नहीं आए। फिर भी मजबूरी ये है, we can't wait for anybody and we have to start our program. ये वजह से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। भैया को फोन करो। सबसे पहले I will start with the thing which has happened तुम्हारे फोन में today. 9:30 बेल है हमारा, 9:30 के बावजूद 9:45 को we are going to allow again, 9:45 को भी नहीं आते, 10 o'clock will come. That is not the right thing. सबसे पहले बच्चों को ताकीद देना है, जो काम करना है from the beginning, जो शुरुआत करती, the thing which she, जो पहला दिखता वही दिखता करते। मतलब सबसे पहले टाइम सेंस होना हमारे मजहब में। अब हमारे मजहब को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है टाइम के बारे में। वजह क्या? फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा को टाइम 5 मिनट की नमाज पढ़ते हैं। सोच लो अगर 2 मिनट लेट आए हमें, नमाज कज़ा होगी। तो हमारे हुजूर जो हुजूर और साहबिया ने टाइम के बारे में बहुत सारी चीजें बता दो भाई, 2 मिनट लेट आए तुम्हारा कज़ा होगा। ऐसा नहीं है कभी गए कभी जाको दर्शन करने का गया, ऐसा नहीं है हमारे मजहब में। लेकिन हमें क्या है प्रॉब्लम, हमें आज बोले 2 दिन के बाद, सवा बोले 1 साल के बाद हमें बात करते, गलत दो। सबसे पहले ये हमें टाइम सेंस हमें ख्याल रखना है। 9:30 मतलब 9:30 को भेजना है, और बच्चे क्या कर रही क्या नहीं कर रही वो देखना। सबसे पहले और एक क्या करते हैं, यूनिफॉर्म। बच्चे यूनिफॉर्म कब देखते हैं, सॉक्स कब देखते हैं, बैग कब देखते हैं, सुबह ही निकलने के टाइम को देखते हैं, वो गलत। बच्चों को आदत दिलाना है, घर को जाते ही आईडी कार्ड, सॉक्स और जो टाइम टेबल के हिसाब से बुक्स जो ही वो साथ में रखना है, आदत दिलाना है। आदत नहीं डाला है, कल के दिन बहुत फर्क पड़ता है। स्कूल और जिंदगी दो भी एक ही मेरे हिसाब से। स्कूल में हमें क्या सिखाते हैं, 10 के बराबर हर चीज करो, और ऐसा जिंदगी में भी हर चीज, सुबह का नाश्ता सुबह में ही करना है, दोपहर का खाना दोपहर कुछ खाना है, रात कुछ खाना है। हमें वैसा नहीं है। बहुत सारे घरों में ऐसा प्रॉब्लम है, सुबह को चाप बिस्किट खिला डाले होगा किसा का तब। बच्चे की हालत क्या होना, आज चलो हमें जो भी खा रही हमें जहर खा रही। जहर मतलब हर चीज केमिकल्स मिला हुआ है, कोई भी चीज तुम्हारा असली चीज नहीं मिल रहा। वैसे में भी हमें बच्चों को हमें सही तरीके से सुबह को नाश्ता नहीं कराए तो बच्चों की हालत क्या होती है वो सोचो। 40-50 के एवरेज में आ गई। आज जो लाइफ सिस्टम है हमारा 80-90 तक था, 100 तक भी था, आज 40 से 60 को आपको पहुंचा। वजह क्या, हमें जहर खाई। आप रोज जहर टाइम के बराबर दी, मतलब जहर का मतलब क्या, नाश्ता टाइम के बराबर देंगे, खाना टाइम के बराबर देंगे, और रात का और हमारा सोने का टाइम भी बराबर नहीं है। बहुत सारे घरों में 12, 1, 2 हो जाते तब भी नहीं सो को रहते। कोई बच्चा टीवी देखते रहता, कोई मेहमान आते रहते। ये इसमें ये झंझट में बच्चों को डाला न को। मेरे हिसाब से 60-70% बच्चों को ये आदत नहीं डाले, सुबह ही उठने के बाद या सुबह को टॉयलेट को जाना है, वो आदत डालाना। जब आदत डलाती वो प्रैक्टिस होता। नहीं, हमें प्रैक्टिस नहीं कराए तो बहुत कुछ फर्क पड़ता, हमारा लाइफ स्टाइल ही चेंज होगा। तो इसके वास्ते
بچہ اٹھنے کے ساتھ he has to go for the toilet, he has to clean. بہتر ہے ہر روز پانی نہ ہو. تو یہ کر لے تو گئے تو بچہ کی زندگی میں بہت کچھ چینجز آتا ہے. لیکن ہمیں وہ عادت نہیں ڈالنی. صبح ہی اٹھائے زبردستی اٹھو اٹھا ڈالے, اس کے بعد بیگ دیے بھیج ڈالے, اور چار بسکٹ. وہ بسکٹ میدے کا چیز کھانا نہیں ہے ایکچولی. تو پھر بھی بہت سارے پیرنٹس ایسا کریں. مہربانی کر کے وہ چینجز کرو. اور اس کے بعد بچہ اسکول کو آیا, اسکول کو آنے کے بعد کیا کریا, کم سے کم 10-15 منٹ ایک روز کو پوچھو. بہت سارے کیا کرتے ہیں, اسکول کو بھیجنے کے بعد عربی گیا, عربی سے ٹیوشن کو گیا, ٹیوشن میں کیا کریا وہ نہیں دیکھے, عربی میں کیا کریا نہیں دیکھے, اسکول میں کیا کریا نہیں دیکھے, ہوم ورک کریا یا نہیں کریا وہ بھی نہیں دیکھے. یہ ہمیں ہر ایک کو واٹس ایپ پہ میسج کر رہی. یہاں تک بچہ irregular ہے, ایبسینٹ ہے, بچہ ہوم ورک نہیں کریا, کون دیکھ رہی, who is taking care, کوئی بھی اس کے بارے میں فکر نہیں کرتی. اسکول کو بھیج ڈالے ہوگا, یہ نہیں چلتا. ایکچوئل میں بچوں کو صحیح تربیت کرنا ہے. چلو ہمیں غریب ہوں, میں مانتا ہوں غریبی ہمارے رہن سہن میں ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے سوچ میں نہیں ہونا غریبی. ہمارا سوچ جو ہے بہت اچھے سے اچھے خیال ہونا. میں بھی ہمارے بچے کو ایک IAS آفیسر بنا دو, ایک MBBS ڈاکٹر بنا دو, ایک انجینئر بنا دو, بالکل وہ سوچ میں غریبی نہیں آنا. غریبی گھر میں رہنے دو تو بچہ بگڑنے کے چانسز ہیں. آج بہت سارے پیرنٹس ایسا بھی سن کو ہمیں, ہمارا بچے یہاں تک بول رہا میں کہاں کی چلے جاتا ہوں, کدھر کی چلے جاتا ہوں, وجہ کیا, تنگ کر رہی نہیں. ایکچولی ہمارے زمانے میں تو پکڑ کو ایسا مارتے تھے, پیرنٹس بھی ہوں گے, ٹیچرز بھی ہوں گے, اس کا یہ نہیں تھا. آج کیا کری, ذرا انڈا ڈال لے, میں کیا کی کر لے تو, کدھر کی کر لے تو. بچے وہاں تک سوچتے ہیں کہاں سے, بیکاز آف میڈیا. سوشل میڈیا تو اتنا خراب ہو گیا ہے, اور 90% اس میں غلط چیزیں آتی, غلط چیزیں اور غلط انفارمیشن, جھوٹا انفارمیشن آتا, وہ صحیح نہیں رہتا. پھر بھی کیا کر رہی ہمیں یقین کر لے کو جائے. تو یہ سب اوائڈ کرو, مہربانی کر کو بچوں کو برابر ٹائم کے برابر بھیجو. بچہ کیا کر رہا نہیں کر رہا وہ خیال رکھو بچے کے واسطے. اور ہمارا لائف کیا ہے, بچوں کو تربیت کرنا, بچوں کو ایک قابل بنانا, اس کے پیچھے برابر ہمیں دیکھنا ضروری ہے. تو بہتر ہے, میں سب سے ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں, جو برابر ٹائم کے برابر دیکھو. تمہیں بھی بات کرو, ہمیں بھی بات کریں گے انشاءاللہ. وہ بچے کو سدھارنے کی کوشش کریں گے. 90% سدھر جاتا. محبت سے جنگ جیت سکتی, نفرت سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا. مطلب تمہیں پکڑ کو مار ڈالے, 2 منٹ ہی سدھر کر رہتا سا بچہ, اس کے بعد کیا ہوتا معلوم, پھر ڈیویٹ ہو جاتا. مہربانی کر کے وہ نہ کو, نفرت سے نہ کو, محبت سے اسے اپنا کرنا ہے, ایسا جانا ہے, یہ چیز ایسا ہے نہیں, اس کے بعد یہ کرے تو ایسا ہوتا. تو اسے تربیت سے ہی کریں گے. نفرت سے کیا ہو جاتا ہے, مجھے پکڑ کو مارتے رہتی, بچہ بہک جاتا اور دوسرے تیسرے کاموں میں نکل جاتا. آج بہت حالت خراب ہے, ہمیں تو محلے میں دیکھ رہی, بہت سارے چیزیں دیکھ رہی. انشاءاللہ 2 دن میں یہاں ڈرگس کے بارے میں ایک ریلی بھی نکل رہا ہے. کتنا نکالے تو بھی فائدہ نہیں ہے. وجہ کیا, کتنا کیا نکالنا, بچوں کو صحیح طریقے سے لینا ہمارا فرض بنتا. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آپ سب ساتھ دیں گے اور بچوں کو اچھے سے اچھا میں. تو آج یہ سلسلے سے آپ تمام کو میں گزارشانہ عرض کرتی ہوں کہ والدین سے جب سے فرسٹ سے پہلے, سب سے پہلے ٹیچر سے پہلے ماں کا درجہ ہوتا ہے. بچوں کو سنبھالنا, سکھانا, پڑھانا, سب کچھ ماں کا درجہ ہوتا ہے. ماں سب سے پہلی ٹیچر ہے, ماں سب سے پہلی استاد ہے. ماں سب کچھ کرتی ہے, کر سکتی ہے. ماں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے آپ تمام سے درخواست کرتی ہوں, ماں پہ جو درجہ دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے, وہ سب سے بہت بڑا درجہ ہے, ایک انمول درجہ ہے, ایک نعمت عطا کیا ہے. ہر چیز مل سکتی ہے دنیا میں. ماں کو اپنی انسانیت کے ناطے, انسانیت سے بچوں کو آگے بڑھانا تمہارا فرض بنتا ہے. بچے اپنے ہی
अपने बच्चों को बच्चे से इज्जत भी मिलती है, जिल्लत भी मिलती है। अगर बच्चों को अच्छी तालीम याफ्ता दो तो तुम्हारा तरक्की ही तरक्की मिलती है और इज्जत याफ्ता भी मिलती है, तुम्हारा सिर ऊंचा हो जाता है। कहाँ भी खबर के बच्चे के वालिदैन ही इनके माँ बाप हैं तो इनको दिखाते ही तो सबसे पहले तुम्हीं को दर्जा मिलता है। इसलिए इस 22 मई पर तुम आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि माँ सबसे बड़ी चीज है। आज मैं वालिदैन से यह गुजारिश करती हूँ, टीचर्स तो स्कूल में होते हैं, माँ तो पहले घर में होते हैं। तुम्हें अंगली पकड़ के स्कूल को लाकर छोड़ते हैं तो बच्चा हम ही देखता है, तो सबसे पहले देखता है तो तुम्हीं की तरबियत सबसे ज्यादा देना जरूरी है। ये एक तो बात मैं सबसे पहले बोलती हूँ। दीन दुनिया में दीन और दुनिया की इल्म सबसे बड़ी जरूरी चीज है। सबसे पहले दीन होना जरूरी है। बच्चों को सबसे 5 साल के बाद से मदरसे से दाखिल कराओ और सबसे 5वीं क्लास तक उनको दीन के बारे में सबकी पूरी तालीम याफ्ता करने की कोशिश करो। ये आज बच्चों को तरबियत है, दीन क्या है सबसे बड़ा सिखाती है, बड़ों का छोटों का अदब सिखाती है। कुरान शरीफ सबसे बड़ी चीज है। सबसे पहले नरम होना, दीन हमारा मिजाज गर्मी होना है तो दीन होना जरूरी है। दीन को पहले अहम दो और उसके बाद दुनिया की कोशिश करो। आज दुनिया की तो आज तो स्कूल के मामले में जो बताओ से जो क्या नहीं करे तो वो होमवर्क कराना है, ये सब चीजें आपने पर जिम्मेदारी पड़ती है। ये नहीं कि चले स्कूल चला बच्चा घर से आया फिर ट्यूशन भेजे मदरसे गया हो गया मतलब नहीं, तो कुछ तो वक्त निकालना घर में निकालो, घर में निकाल कर बच्चों के साथ देखने की कोशिश करो। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी एक तरबियत अहम होती है। बच्चों को यहाँ तक के जो बच्चा बड़ा हो गया 5वीं क्लास आ गया अकलमंद है नहीं, तो 18 साल तक का बच्चे का माइंड मैच्योर नहीं होता। जब तक तुम्हारा साथ रहना जरूरी है, उसे बड़ापन देने की जरूरत नहीं रहती। जब तक माँ बाप की कुछ बात के ऊपर चलने की रास्ते पर चलने की कोशिश करें। तो ये आज तमाम वालिदैन से बता रही हूँ, तो वक्त की पाबंदी करो। सुबह सवेरे बच्चों को स्कूल को वक्त पर पहुँचाओ और उनकी जो भी कमोपेशी है, तुम्हारे से जो कमोपेशी है तो बच्चा नहीं पढ़ रहा है पढ़ रहा, जो भी तुमने शिकायत नजर आ रही तो हर महीना पेरेंट्स मीटिंग किया जाता, उसके अंदर आपको दर्ज करो। तो ये और तुम्हारे बीच में उस्ताद और पेरेंट्स के बीच में पलता है बच्चा, एक फूल खिले सका खिलता है बच्चा। जब खाली तुम्हें अपने को आज देखने का मंजर है कि आज तो 10:30 बजे तो वक्त मुहर्रम किया था मीटिंग का, फिर भी आने में ताखिर करी तो कोई ये नहीं की तो हमें भी नहीं बता सकते, फिर आना जरूरी है। पर तुम्हें आज हमारी कौम में ये टाइम का ये नहीं कर सकते, पर दूसरे कौम में देखो तो मीटिंग है पूरा आधा घंटे आगे जाकर प्रीमिसेस में खड़े रहती, वेट करते रहती। हमारी कौम आज देखो सुबह आने तो परसों जाकर पूछी करते, ये ऐसा नहीं होता। तो बच्चों को टाइम पर वक्त पर जाकर पूछना, देखना, देखभाल करना तुम्हारा काम होता है। आज मैं तमाम से भी यही करना चाहती हूँ, तो वालिदैन का सबसे बड़ा रोल होता है। तुम्हें अपनी जो भी कामों काज हो जाती है उसके हालात में गुजर नहीं बचे तो तुम्हें नहीं मालूम हो रहा। तो आज हमारी कौम में सबसे बड़ा इस्लाम हमारा बोला है, तो ये इस्लाम तवज्जो ऐसा अच्छा दिया है, कोई मजहब में नहीं, फिर भी हमारे मजहब से आरास्ता करो। अच्छे बच्चों को अच्छी तालीम याफ्ता दो और उनको तालीम से कमोपेशी करने से कुछ भी फायदा नहीं होता। तालीम सबसे बड़ी चीज है, तालीम एक अनमोल हीरा है। तालीम से हर एक चीज मिल सकती है, तो पैसों से कुछ नहीं मिलती। तो मैं इतना बताती हूँ, तालीम से सबसे बड़ी काफी सब चीज चुरा सकता है इंसान के पास से, तालीम नहीं चुरा सकता, इल्म नहीं चुरा सकता। तो सब बच्चों को इल्म से नवाजो और इल्म से बढ़ाने की कोशिश करो। तो हमारे कौम में सबसे ज्यादा देखनी तो तालीम क्या है बहुत कम हो गई है, सब चीज जाती ड्राफ्ट हो जाती, ड्राफ्ट हो जाएगी, बच्चों में क्या